Hello everyone, how are you? I'm too good and I am hoping you are doing great. So let's learn something new in quick succession. Last day the chapter I introduced based on imperative sentences. Do you have any confusion? No, sir. So if any confusion is there, after class you can meet me. I can resolve your problem. So now coming to the business, I'm going to start once again a new chapter. It's not a new chapter. This is a chapter which is related to imperative sentences, right? So it means once again today I'm going to teach you imperative sentences, but today there will be something new. So our headline, IMPERATIVE, imperative sentences. Once again we are going to learn imperative sentences, but in this time the theme will be different. The theme is let. This 3-letter word let, it will work efficiently while making sentences, right? Let has a very special meaning. It also comes under imperative sentences, right? So in a short time we will learn very important thing about this chapter. So let's commence. Let means, in short, I would say allow, right? Right, and it is also called permission. Permission. We use let in place of using परमिशन यानी परमिट और अलाउ. किसी को अलाउ करना यानी किसी को अनुमति देना. अनुमति लेने देने के लिए एक्चुअली में लेट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेट? STR स्ट्रक्चर. एट फर्स्ट लेट प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस verb 1 plus other word. This is the primary structure of let. Let plus objects plus V1 plus other word. And we all know in imperative sentences we start the sentence with verb 1. So as far as verb forms are concerned, so let is the V1 यानी verb 1 of verb forms, like 5 verb forms. So V1 let, V2 once again let, V3 let, V4 letting, or V5 lets, right? So here we are using the first form of the let word. So let plus objects plus V1 plus other word. Here one new thing you may be observing, object, because V1 you know, ये verb you know very well, other word पता ही है. ये वाला सेक्शन लगता है नया लग रहा हो आप लोगों को, ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट, द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का लिस्ट देख लेते हैं. बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्ट इट विल बी इजी फॉर अस टू क्रिएट सेंटेंसेस, राइट? सो एट फर्स्ट मी, यू, them, him, her and us. These are the 5 objects. I का ऑब्जेक्ट me, you का ऑब्जेक्ट you, they का ऑब्जेक्ट them, he का ऑब्जेक्ट him, she का her और we का us. And in हिंदी मुझे, तुम्हें, उन्हें, उसे, उसे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमें. These are the Hindi of these all objects. One thing I want to clear before I create sentences. One object will not be used in this chapter, and the object is you.
यू का प्रयोग हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमिशन किससे लोगे? कोई ना कोई तो परमिशन देने वाला चाहिए, तो यू हमें परमिशन देगा, बाकी के लोग परमिशन लेंगे, राइट। यू का प्रयोग हम लोग लेटर ऑन करेंगे, उसका डिफरेंट मीनिंग है, बट यहाँ पर इस चैप्टर में यू का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यू जो है वो परमिशन देगा ना कि लेगा, बाकी के लोग परमिशन लेंगे, राइट। एंड हाउ टू क्रिएट सेंटेंसेस, लेट्स टॉक अबाउट। One more thing, I forgot to tell you. What is the Hindi of late? Here the meaning, Hindi meaning of late is या तो दें, या तो दो, या फिर दीजिए। अकॉर्डिंग टू द पर्सन, सामने आपका इंसान कौन है जिसे आप परमिशन ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको हिंदी लगाना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? सामने अगर जैसे बड़े आपसे कोई बड़े हैं और उससे आप परमिशन ले रहे हो, तो तुम दो नहीं बोल सकते। अपने बाबूजी क्या बोलोगे? हमको जाने दो। अपने मम्मी से क्या बोलोगे? हमको जानो दो रे, ऐसा नहीं बोल सकते ना। यू हैव टू स्पीक सम रिस्पेक्टेड वर्ड्स, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यू टू यूज़ इट। जैसे कि मम्मी हमको, मुझे बोलने दीजिए, पापा हमको ये काम करने दीजिए। सो दीजिए टाइप के वर्ड्स। अगर सेम एज है तो दे और दो और दे चलेगा विद द सेम एज, और समबडी इज स्मॉलर देन यू। बट अपने से बड़े को थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली आपको बोलना है। तीनों ही हिंदी का मतलब लेट है, राइट। एज फार एज सेंटेंसेस आर कंसर्न, लुक एट दैट। मुझे सिंपल वन, मुझे बोलने, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा है तो फिर मैं उससे परमिशन ले रहा हूँ। सभी लोग बोले जा रहे हैं, मुझे कोई परमिशन ही नहीं दे रहा, मुझे कोई अलाउ ही नहीं कर रहा बोलने के लिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? परमिशन लूँगा, राइट। तो लुक एट दैट। सबसे पहले मुझे, अगर मैं अकॉर्डिंग टू हिंदी बोलूँ तो मुझे हो जाएगा मी, बोलने हो जाएगा स्पीक, और दीजिए हो जाएगा लेट। तो हो जाएगा मी स्पीक लेट। दिस इज़ नॉट द सिस्टमैटिक सेंटेंस, इट इज़ नॉट एन एप्पल पाई ऑर्डर। तो क्या करेंगे हम इसको? एन एप्पल पाई ऑर्डर करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जाएंगे, राइट। सबसे पहले क्या आएगा? लेट, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, लेट मी स्पीक, राइट। उसे पढ़ने दें, उसे पढ़ने दें। नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं उसके लिए परमिशन ले रहा हूँ कि उसे पढ़ने दें। देन वंस अगेन, लेट हिम स्टडी। अगर लड़की है, अगर लड़की है वो, तो लेट हर स्टडी। तो लड़का है तो लेट हिम स्टडी, लड़की है तो लेट हर स्टडी। नेक्स्ट, अगर बहुत से लोगों को परमिशन दिलवा रहा हूं तो, या परमिशन ले रहा हूं बहुत से लोगों के लिए, तो लेट देम प्ले क्रिकेट। तो हिंदी हो जाएगा उन्हें क्रिकेट खेलने दें। यू तो इस्तेमाल करना नहीं है, मी मैंने कर दिया, ही कर दिया, यानी हिम कर दिया, सी की जगह पर हर कर दिया, देम कर दिया। बचा एक लास्ट अस, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें मैं यानी थर्ड पर्सन के साथ साथ फर्स्ट पर्सन यानी मैं भी शामिल हूँ उसमें, राइट। तो उसमें हम कहते हैं लेट अस प्रैक्टिस, लेट अस प्रैक्टिस। तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डालेंगे शॉर्टकट में, जो कि नॉर्मल आजकल बेसिकली व्हेन यू स्पीक नॉर्मल इंग्लिश और या फॉर्मल इंग्लिश, उसमें लेट अस को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज किया जाता है। लेट अस यानी कि लेट्स, प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस यानी कि लेट अस प्रैक्टिस। में मैं भी शामिल हूँ, इस प्रैक्टिस में मैं भी हूँ। तो हिंदी क्या हो जाएगा? हमें अभ्यास करने दें,
या फिर चलो अभ्यास करते हैं, राइट, क्योंकि मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो हिंदी, एज फार एज हिंदी इज कंसर्न, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए, लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दीजिए, लेट हर स्टडी, फिर लड़की है, हर मतलब लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसे पढ़ने दीजिए। नेक्स्ट है लेट देम प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने दें। एंड लास्ट है लेट्स प्रैक्टिस, इट मीन्स हमें अभ्यास करने दें, हमें। So in this way we have to use let. Let has some more uses. Next my class I will let you know some more uses of let. So for today let's call it the day. See you in my next class. Goodbye.